Good morning, students. Today's part is further we are continuing with the kingdom Plantae, that is METAPHYTA. I want to make you clear one thing, that only doing a multiple choice question for your NEET does not solve the purpose of qualifying the NEET or getting admission in a medical college. It is very clear that this competition is very tough, and how to crack it depends upon your ability, your teacher's style, your dedication, and most of the important is your basic intelligence. Say for example, I am talking about Plantae. Plantae, how to prepare for the Plantae? We are just taking the competition books, doing multiple choice question, that will never solve our problem. What we are supposed to do? Yesterday we did certain names. What's the name of father of biology and all these things. We are supposed to know. Today we are supposed to know the scientific name of the plants present in each group. There are certain characteristic feature. What are the strange facts about plants? This is a second part. Third part, we are supposed to do the classification, the characteristics, how they are different from each other, how they are similar to each other, how this group is very difficult from others, which feature is only present in gymnosperm and not present in others, which feature is present only in embryophyta and tracheophyta. So that's another part. Then we are supposed to know about the diagram, which is the most important part in Plantae. If we are not knowing the diagram, we are not able to do anything in Plantae. So first of all, you should learn the diagrams. How we should learn the diagram? For the learning of the diagram, you are supposed to practice them twice or thrice. Say for example, how I teach in my class. I start with the bryophyta. I draw the life cycle of bryophyte, indicating each and every phases by the different colors. Say I am using all, it has many gametophytic phases. So I draw all the diagrams with a red marker, and for gametophytic, and sporophyte is only for the shorter duration, that is only the capsule, foot and capsule. So I draw the capsule with the different pen or the marker. So students are able to recognize the difference, that why all the diagrams are red, are drawn with the red, and only the capsule part is drawn with the green or whatsoever may be the different. So first of all, it gives indication that other parts are having different ploidy and this is having different ploidy. So all other are haploid and that is diploid. This is the first part. Then we are supposed to take the diagram of the pteridophyte. We draw all the sporophytic, because main dominating phase is sporophytic. We are supposed to draw all the sporophytic phase there, and the prothallus, that is the gametophytic, we draw it with the different marker. In this way we can summarize whole the gametophytic and sporophytic and bryophyte and pteridophyte. This is the first part you are supposed to do. I'm telling you, now in this chapter we have certain in this lecture, today's lecture, we have certain very important plants which are giving us something, which are yielding, how they are related to this. We have some false names, although somewhere it is written mosses, but it's not a moss. So we are supposed to concentrate upon those. Third thing, we are supposed to concentrate upon the word meaning, split word, break up words. Then we are supposed to know the meaning of the actual biology, and we are able to crack the any competition. Now let us start with the kingdom Plantae. Kingdom Plantae or METAPHYTA, meta multicellular, phyta is the plant. Red snow, Chlamydomonas nivalis and Haematococcus scotiella. These two, they are green algae. Then green yellow snow, that Chlamydomonas yellow stoneaceae. Then black snow, Rhapidonema is the extinct sponge. ये देखिए रेपिडोमिना एक्सटिंक्ट स्पॉन्ज है.
तो बट स्नो से रिलेटेड है इसलिए इसको यहाँ रखा गया। क्रायो होता है स्नो, CROI, क्रायो। फाइटा इज अ प्लांट, साइक्रो इज अ वेरी कोल्ड, इट्स अ वेरी कोल्ड, तो कोल्ड इज, ये देखिए प्लांट ग्रोइंग इन स्नो इज अ क्रायोफाइट, क्रायो, and this is cycro is, that is the colder. So this is one part we are supposed to do. Then coming to the next, that is the summer alga, sporophyte, spirogara, pond silk बोलते हैं इसको, pond slum, shellball बोलते हैं इसको, विंटर एल्गी, यूलोथ्रिक्स, स्पेस एल्गी, क्लोरेला, बहुत ज़्यादा काम हुआ उस पर, स्पेस एल्गी में क्लोरेला, बहुत बहुत क्वेश्चन पूछा था। अमरेला एल्गी, एस्टिबुलेरिया, बहुत 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 लार्जेस्ट सिंगल सेल है। रोलिंग एल्गी इज द वॉलवॉक्स कॉलोनियल है, कॉलोनी होती है इसमें। देन इज द पायरिनॉइड, ये देखिए रिजर्व फूड मटेरियल है, सीड सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च। देन मैनिटॉल इज द नॉन कैलोरिक शुगर, ये मैनिटॉल गुड फॉर डायबिटिक मेलाइटिस वालों को ये दिया जाता है। देन आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, डिक्ट्योटा एंड एक्टोकार्पस में होता है। आइसोमॉर्फिक हुआ, डिप्लॉयड स्पोरोफाइट एंड हैप्लॉयड गमीटोफाइट आर नॉट डिफरेंट इन मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। एक बार फिर से, आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, एग्जाम्पल इज डिक्ट्योटा एंड एक्टोकार्पस, that diploid sporophyte and haploid gametophytes are not different in morphological structure, वो बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, इसलिए इनको सेम जैसे कहते हैं हम, सेम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है जब एक जनरेशन दूसरे के साथ अल्टरनेट करती है, कि कुछ पार्ट स्पोरोफाइट के आएंगे, फिर स्पोरोफाइट गमीटोफाइट बनाएगा, फिर गमीटोफाइट फिर स्पोरोफाइट बनाएगा। उसमें बिल्कुल क्लियरली बाहर से देखा जाता है जनरल प्लांट्स में कि स्पोरोफाइट ऐसा है और गमीटोफाइट ऐसा है, डिफरेंट है, तो उस डिफरेंट को बोलते हैं हेटेरोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ generation. That is this is Postelicia, that is sea palm. So just have a look on this: the Pyrenoid, Mannitol, Isomorphic Alternation Generation, Heteromorphic and Postelia. Then we are supposed to know about fucoxanthin is found in brown algae, diatoms and dinoflagellates, very important. Fucoxanthin ये पिगमेंट कहाँ पर है? ब्राउन एल्गी, सेकंड वाले में। पहला लर्न कैसे किया था हमने कल किया था पहला रेड एल्गी, फिर ब्राउन एल्गी, और इससे पीछे वाले चैप्टर में किया था रेड, ब्राउन एंड ग्रीन एल्गी। देन ब्राउन एल्गी इज आल्सो नोन एज कैल्प, ये देखिए सबसे बड़ी है, सबसे बड़ा है, दे हैव लार्जेस्ट साइज, कैल्प बोलते हैं इनको, बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्प, कई बार पूछा जाता है कंपटीशन में। एंड लार्जेस्ट एल्गी माइक्रोसिस्टिस इज द लार्जेस्ट, 60 मीटर इन लेंथ है। सार्गासो सी इज द फेमस ओशियनिक डिजर्ट, ये देखिए सार्गासो सी, इसको नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इसमें ये ब्राउन एल्गी इतनी ज़्यादा है कि इस सी का नाम ही सार्गासो सी बढ़ गया। गॉट इट वंस अगेन कि सार्गासो सी ये नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है, जिसका नाम सार्गासो सी इसलिए पड़ गया क्योंकि यहाँ अबंडेंटली सार्गेसम है। सार्गेसम इज द ब्राउन एल्गी। देन थैलियोसाइलियम द सी फर्न, ये आ गया पोरिफेरा हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ, मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम तो ये उसमें होता है, ऑफियोग्लोसम का लग गया था हमने। दैट इज पोरफायरा हैज़ द मिनिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2। नेट्रियम इज अ डेस्मिड, ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, डेस्मिड, नेट्रियम इज अ डेस्मिड हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन एल्गी, डेस्मिड एल्गी में रखा गया। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस शोन बाय द रेड एल्गी in blue green region of the light. Agrophyta, agro means agar producing algae like Glycerium, Gelidium, ये सारे कॉन्ट्रस आयरिश मॉस भी कहते हैं इसको, जेलिडियम, ये सारे के सारे दे आर रेड एल्गी। देन largest producer of algae is China. Bryology, the science constituted, this is science connected with the study of bryophyte is known as bryology. Indian कल हमने किया था, सर कश्यप है, हटविग है, ब्रायोफाइट ओरिजिन, ऑर्डोवेशियन, डेविडियन, ऐसे पीरियड्स होते हैं, एज ऑफ साइलोरियन पीरियड। नॉन ग्रेन ब्रायोफाइट, ये देखिए नॉन ग्रेन ब्रायोफाइट है, ये सेप्रोट्रॉफ है, तो ये एक्सेप्शन है कि अदरवाइज तो सारे के सारे ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, दे आर सेप्रोट। माइक्रोस्कोप ब्रायोफाइट है, ये माइक्रोस्कोपिक है, लेगुनिया, मेल बॉक्समिया, फाइला एंड
एफेमेरियम आर द माइक्रोस्कोपिक ब्रायोफाइट। गोल्ड माइंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्ड माइंस ऑफ लिवरफोर्ड, दैट इज वेस्टर्न हिमालय। रिक्सिया फ्लूटेंस इज डिवॉइड ऑफ स्केल्स एंड रॉइजॉइड नहीं होते। मार्केंशिया, ये एक मर्चेंट के नाम पे इसका नाम रखा था, इज सॉरी निकोलस मर्चेंट था, दैट वाज अ फ्रेंच बॉटनिस्ट। Markensia and Funaria, they are in bryophytes. Rixia livers is the name of the politician Rixia. एपोस्पोरी एपोगैमी दो टर्म्स बहुत बार पूछी जाती हैं। एपो का मीनिंग होता है विदाउट, विदाउट स्पोर, एंड विदाउट गैमी। गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, फ्यूजन और मैरिज, तो दैट इज नोन एज एपोस्पोरी एंड एपोगैमी। फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द सेल ऑफ स्पोरोफाइट विदाउट फॉर्मेशन ऑफ स्पोर, ये देखिए स्पोर के बिना, और ये फॉर्मेशन ऑफ स्पोरोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम द गैमेटोफाइट विदाउट इन्वॉल्विंग फ्यूजन। सो दिस इज स्लेजिनेला, ये देखिए स्लेजिनेला ब्रायोपोटेरिस, जिसको आयुर्वेदा में क्या बोला जाता है, संजीवनी बूटी। देन स्लेजिनेला रुपेस्ट्रिस इज द बर्ड्स नेस्ट मॉस। देन इज द थियोप्रेस्टस इज फादर ऑफ ट्रिडोफाइट। देखिए तीन चीज़ों का फादर बोला गया है इनको। लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम क्या है, क्लब मॉस की कैटेगरी है ये। लाइकोमोडियम फेमस क्रिश्चियन ग्रीन बोला जाता है इसको। देन जाइलम विद वेसल इन द स्टेम ऑफ इक्वेस्टियम में होते हैं। आइसोल्टेर इज अ ट्रिडोफाइट विद सेकेंडरी ग्रोथ कॉमनली कॉल्ड एज क्विलवर्ट, ये एक एक्सेप्शन है। ट्रिडोफाइट ओरिजिनेटेड इन साइलोरियन पीरियड। देन इज द गोल्ड एज ऑफ ट्रिडोफाइट डेवोनियन पीरियड। सोरो ऑफ कश्मीर, दैट इज एक्वाटिक वीड, साल्विनिया को बोला था। ये आ गया वो जो मैंने पहले वो था। ऑफियोग्लोसम, ऑफियोग्लोसम जिसमें 1262 क्रोमोजोम नंबर है। एडर्स टंग फर्न भी बोलते हैं इसको। अजोला एनाबेना, यस्टरडे आई टोल्ड यू, अजोला एनाबेना दैट शो सिम्बोसिस यूज्ड ऑफ फर्टिलाइजर राइस फील्ड में, धान की खेती में यूज होती है। स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट वाटर फर्न अजोला। टॉलेस्ट ब्रायोफाइट इज एल्सोफिला, एल्सोफिला इज द टॉलेस्ट, इसको ट्री फर्न भी बोला जाता है। रूटलेस ट्री फर्न साल्विनिया, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आर मॉडिफाइड लीव्स। ट्रिडोलॉजी स्टडी ऑफ ट्रिडोफाइट, रॉयल फर्न ऑस्मुंडा, सिल्वर फर्न्स कैलेंथस। Then we have the sun fern potaris, tree fern, that is Scythia, ये पहले भी किया हमने। एल्सोफिला, कैरेट फर्न, ओनिकम, ग्रे फर्न, बोट्राइकम, देन ब्रेकन फर्न, टेरिडियम। वाटर फर्न अजोला सल्वेनिया मार्सिलिया, ये देखिए कई बार ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिशन में। ओरिजिन ऑफ जिम्नोस्पर्म डेवोनियन पीरियड में ओरिजिनेट हुआ। एज ऑफ जिम्नोस्पर्म ट्रायसिक एंड जुरासिक एज, इसके बराबर हैं ये जो उधर ट्रायसिक जुरासिक में जहाँ ट्रिडोफाइट ये रेप्टाइल ओरिजिनेट हुए थे। बेंथम एंड हुकर प्लेस्ड जिम्नोस्पर्म बिटवीन मोनोकॉट एंड डाइकॉट, बाद में इसको मॉडिफाई कर दिया गया। रॉबर्ट ब्राउन सेपरेटेड जिम्नोस्पर्म फ्रॉम एंजियोस्पर्म एंड डिक्लेयर इट एज अ सेपरेट ग्रुप। Then Theophrastus, the first, used the term gymnosperm in his book entitled Equity in the Plants. Ephedra, yesterday we did, the largest pollen chamber होता है इसमें, और एफेड्रिन से derived होती है। Cycas, Ginkgo and Metasequoia, the living fossil. None of the Gymnosperms is annual and herbaceous, again very important. Then we have the ciliated sperms. Cycas और Ginkgo में ciliated होते हैं। लार्जेस्ट ओव्यूल, देखो लार्जेस्ट की जहाँ बात आएगी वो साइकस है। लार्जेस्ट एक गमीटोफाइट को सोच के, लार्जेस्ट गमीटोफाइट इज किसका होता है, फिनेरिया का होता है। लार्जेस्ट ओव्यूल इज साइकस, लार्जेस्ट एग सेल इज दिस साइकस, लार्जेस्ट एंथ्रोजाइज इज साइकस, लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म सिक्वा, देन स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म जेमिया पिग्मिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट साइकार्ड इज मैक्रोजेमिया, फादर ऑफ फॉरेस्ट। सिक्वा सेम्परवायरेनस, रेडवुड ट्री बोलते हैं। डबल फर्टिलाइज एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म बट प्रेजेंट इन एफेड्रा, देखिए एक्सेप्शन है ये। नो आर्किगोनियम इन जेनेटिम एंड वेलविशिया। एफेड्रा इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, क्योंकि इसके करेक्टर उनके साथ मिलते जुलते हैं। Then angiosperms are without archegonia, that is non-archegoniate. Herbaceous tree is Musa paradisical, banana का नाम है ये। Grass tree, Dendrocalamus, Bambusa भी बोलते हैं। Birds and paradise of Africa, Streligia regainia, pollinated by sunbird, humming bird, सबसे छोटा बर्ड होता है। वो बर्ड जो सबसे छोटा होता है, सबसे छोटा एग ले करता है, वो बर्ड जिसका कोई शेडो नहीं है। शेडो इतना छोटा है कि शेडो ही नहीं होती। टालेस्ट एंजियोस्पर्म यूकलिप्टस ऑर्गेनस अराउंड 114 मीटर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।